Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Welcome back to your online classes after your winter vacations. Dear students, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The poor will enter the paradise before the rich." After a pause, he added, "O Aisha Raziallahu anhu, never turn a needy person away from your door. Give him something, though it may be only a piece of a date. Respect the poor and love them in spite of their poverty. If you bring the poor and needy closer to you, Allah subhanahu wa ta'ala will bring you closer to himself." Dear students, today we will start our play number 2 according to Smart Syllabus, a visit to a small planet. And do you know what is a planet? A planet is a celestial body and moving in an elliptical orbit around a star, and they are made up of a rock. आपने इससे पहले एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, जिसमें अर्थ हैबिटेंट्स जो थे वो मार्स पे चले गए थे ड्यू टू द डेंजर ऑफ एटम बॉम्ब। और इस प्ले में आप पढ़ेंगे कि एक दूसरे प्लैनेट से जो है वो कोई आपके प्लैनेट पे आता है बंदा, ठीक है। और इसके अलावा कि अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों, व्हाट इज़ अ प्ले? A play is a work of drama, usually consisting of dialogue between characters and intended for theatrical performances rather than just reading. And basically there are 6 elements in the play: thought, theme, ideas, action or plot, and characters. And you can say that audience can be said the most important element of a play or a drama. Okay, and your writer of this play is Gore Vidal, and he is a famous American novelist and playwright. And his first novel, Willow, 1946, was drawn from his wartime experiences, and his most successful plays, Visit to a Small Planet in 1955 and The Best Man in 1960, were adapted for theatre and film. Now comes the title. The play is about the visit of a person, Cretan, from a planet in some solar system to the Earth. Cretan's spaceship or flying saucer lands in the rose garden of Mr. and Mrs. Roger Spalding in the state of Maryland, USA. Ellen, the daughter of Roger Spalding, asks Cretan why he has come to this world. Cretan replies, "Simply a visit to your small planet." The title of the play is thus based on these words of Spalding. Spalding compares the people and life of the earth with the people and life in Spalding's world. Now comes the characters of this play. Cretan, the visitor from outer space. In his spaceship, he lands in the house of Roger Spalding and his wife in Maryland, USA. It is in the late 20th century. Number 2 character is Roger Spalding, a TV broadcaster in whose wife's lawn the spaceship from outer space lands. Number 3, Ellen Spalding, daughter of Roger Spalding, Mrs. Roger Spalding, in whose lawn Cretan's spaceship lands. John Randolph, an agriculturist, he arranges talks between Roger Spalding and others on Earth. General Tom Powers, a product of the National Guard, a strong human character. Aide, the helper to General Powers, technician who operates the TV telecasting equipment for Roger Spalding. Now comes the themes or central idea.
Human beings try to visit other planets and they have gone to the moon. Human beings on other planets, if any, will like to visit our world. The second theme is a comparison of our earthly life with the life on Cretan's planet. The present play is thus a criticism of our so called modern life. Cretan calls our life primitive of the earliest times as compared with life on his planet. Okay, bachcho. Now we will start our play, the translation of our play. Although the translation doesn't come in your paper, but for better comprehension, we will do it. Stock shoot. The night sky, stars, then slowly a luminous object arcs into view. As it is almost upon us, dissolves to the living room of the Spalding house in Maryland. Superimpose card, the time, the day after tomorrow. मौसम और वक्त के लिहाज से जो मंज़र है बच्चों, वो रात का आसमान है, सितारे नज़र आते हैं और फिर एक बहुत चमकती हुई कौस की शक्ल की चीज़ जो है वो घूमती हुई हमारे सामने आती है और ऐसा लगता है जैसे ये हमारे बिल्कुल ऊपर ही आ गई है। और ये मंज़र जो है मैरीलैंड में स्पेल्डिंग के घर के मेहमानों वाले कमरे में जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर सुपर इम्पोज कार्ड जो है वक्त आने वाला परसों का दिन। स्टॉक शॉट कहते हैं बच्चों खेल का पीछे का आम मंज़र जिसकी आड़ में कोई भी अमल किया जाता है, कोई भी एक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। ल्यूमिनस कहते हैं चमकदार और आर्क्स कहते हैं किसी हद तक दायरे में हरकत करना। और सुपर इम्पोज कार्ड जो बच्चों एक ड्रामेटिक टेक्निक होती है जिसके अंदर एक नई सिचुएशन को डेवलप किया जाता है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज TV broadcast. He is middle-aged, anxious, resonant, his wife bored and vague, knits passively while he talks at his desk. Two technicians are on hand operating the equipment. His daughter Ellen, a lively girl of 20, fidgets as she listens. कमरा जो है बच्चों आरामदेह तौर पर कीमती आराइशी अशिया और घरेलू अंदाज में मुनासिब तौर पर सजा हुआ है और रॉजर स्पेल्डिंग अपनी TV नशरियात को अख्ताम पजीर कर रहा है। वो एक दरमियानी उम्र का गैर शाइस्ता गूंजदार आवाज़ रखने वाला आदमी है। उसकी बेजार और शक्की मिजाज बीवी खामोशी से सुन रही है जबकि वो अपने डेस्क पर बोल रहा है और आलात और सामान को चलाने के लिए 2 टेक्नीशियन हाजिर हैं। एलन जो कि उसकी बेटी है, वो एक 20 साल की जिंदा दिल लड़की है, उसकी बातें सुनकर बेचैनी से पहलू बदल रही है। कंक्लूडिंग कहते हैं बच्चों ख़ताम को पहुंचा रहा है। अंक्शस कहते हैं बच्चों शीरीं ज़बान। रेजोनेंट कहते हैं कि लाउड वॉइस्ड ऊंची आवाज़ के साथ। वेग कहते हैं गैर वाज़े, ठीक है। और पैसिवली कहते हैं बच्चों सुस्ती के साथ। और टेक्नीशियन जो है वो मिस्त्री, स्किल्ड पर्सन होता है कोई भी। इक्विपमेंट जो है वो सादो सामान कहते हैं। लाइवली कहते हैं जिंदा दिल और फिजिट्स कहते हैं बेचैनी में पहलू बदलना। स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन एंड सो according to General Pars, who should know if anyone does, the flying object which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. माइक्रोफोन में वो कहता है कि मैं और लिहाजा जनरल पार्स के मुताबिक जिससे बढ़कर किसी और को इल्म नहीं हो सकता, उड़ता हुआ जिस्म जिसने इस कस्म की गैर जिम्मेदाराना अफवाहों को जन्म दिया है, ज़मीन के मदार से गुजरने वाले एक शहाबिये के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, और ये जैसे कि अक्सर लोगों का ख्याल है इस मुल्क का कोई खुफिया हथियार नहीं है, ठीक है। नॉर इज़ इट अ स्पेसशिप एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, और ना ही ये जैसा कि बाज़ बेअक़ल लोगों ने कहा है कि वो खलाई जहाज़ है, वो भी नहीं है, ठीक है। General Pars has assumed me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship. और जनरल पार्स ने मुझे यकीन दिलाया है कि ये बात इंतहाई मशकूक है कि किसी दूसरे सैयारे पर खलाई जहाज़ बनाने के काबिल किसी किस्म की कोई ज़िंदगी मौजूद है। If any travelling is to be done in space, we will do it first. और अगर खला में कोई सफ़र किया जाता है तो हम सबसे पहले करेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और ये उसके बिल्कुल
वही अल्फाज हैं जो उसने कहे हैं। विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज़, और जो अफवाहों के एक और हफ्ते का ख़ात्मा करते हैं। क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, अपनी बीवी और बेटी के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाने के लिए कमरे के पार जाता है। दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका, और मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ मादर वतन अमेरिका को शब बखैर कहते हुए। फ्रॉम माई ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, और सिल्वर क्लीन मैरीलैंड में अपने पुराने ज़मीनों के साथ घर से कौम की ज़िंदा धड़कनों के करीब। कॉन्जेक्चर कहते हैं बच्चों क़यास या अंदाज़ा लगाना। मीटियोर कहते हैं शहाब साक़िब, और इसको आप शूटिंग स्टार भी कहते हैं बच्चों। ऑर्बिट कहते हैं मदार। ल्यूनाटिक कहते हैं क्रेज़ी, मैड, पागल। होमस्टेड कहते हैं ज़मीन। टेक्नीशियन, गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। Spelling, thank you. Technician, yes sir, you were right on time. Spelling nods wearily, his mechanical smile and heartiness suddenly gone. टेक्नीशियन उसे कहता है आज रात का शो बहुत अच्छा रहा। स्पेल्डिंग, शुक्रिया। टेक्नीशियन, हाँ जनाब आप ठीक वक्त पर पहुँचे थे। स्पेल्डिंग थके हुए अंदाज में सर हिलाता है। उसकी मसनूई मुस्कुराहट और ज़िंदा दिली अचानक ख़त्म हो जाती है। मिसेस स्पेल्डिंग, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। टेक्नीशियन, सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग। स्पेल्डिंग, थैंक यू बॉयज़। टेक्नीशियंस गो। मिसेस स्पेल्डिंग, बहुत अच्छा प्यारे, बहुत अच्छा। टेक्नीशियन, मिस्टर स्पेल्डिंग अगले हफ्ते मुलाकात होगी। स्पेल्डिंग, शुक्रिया लड़कों। और टेक्नीशियन चले जाते हैं। स्पेल्डिंग, डू यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन? एलन, ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। स्पेल्डिंग, देन व्हाट डिड आई से? एलन, ओह दैट्स नॉट फेयर। स्पेल्डिंग, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन समवन's own daughter won't listen to what one says while while millions of people. Alan, I always listen daddy, you know that. Alan, मैं हमेशा सुनती हूँ डैडी, और आप ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, उसका बाप उसे पूछते क्या तुम्हें नशरियात पसंद आई? तो एलन कहती है जी मुझे बिल्कुल पसंद आई हैं डैडी। स्पेल्डिंग कहता है तब मैंने क्या कहा था? एलन कहती हो ये सवाल करना तो अच्छी बात नहीं है। तो स्पेल्डिंग कहता है ये कोई खुशकुन बात नहीं है कि जब किसी शख्स की अपनी बेटी ना सुने कि वो क्या कह रहा है, जबकि लाखों लोग। तो एलन कहती है मैं हमेशा आपको सुनती हूँ डैडी, ठीक है। इसमें वेरली कहते हैं बच्चों थके हुए अंदाज में। हार्चनेस कहते हैं खुश तबई से। फ्लैटरिंग कहते हैं मुसरत आमेज़। Mrs. Spalding, we love our broadcasts, dear. I don't know. We love your broadcast, dear. I don't know what we would do without them. Spalding, starve. Alan, I wonder what's keeping John. Spalding, certainly not work. Alan, oh daddy, stop it. John works very hard and you know it. Mrs. Spalding, yes, he is perfectly nice boy, Roger. I like him. Spelling, I know. He has every virtue except the most important one. He has no get up and go. Alan, precisely. He doesn't want to get up and he doesn't want to go because he is already where he wants to be on his own farm, which is exactly where I am going to be when we are married. मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं प्यारे हम तो तुम्हारी नशरियात से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं नहीं जानती कि हम तुम्हारी नशरियात के बगैर हम क्या करेंगे। स्पेल्डिंग कहते हैं फ़ाक़े। एलन कहती है मैं हैरान हूँ कि जॉन को किस बात ने रोक रखा है। स्पेल्डिंग कहता है यकीनन किसी काम ने तो नहीं रोका हुआ होगा उसे। एलन, ओ डैडी इस बात को छोड़ें आप, जॉन तो बहुत मेहनत करता है और आप ये बात जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है हाँ रॉजर वो मुकम्मल तौर पर एक अच्छा लड़का है और मैं उसे पसंद करती हूँ। स्पेल्डिंग कहता है मैं जानता हूँ इसमें हर एक खूबी है माँ सिवाय काम करने और आगे बढ़ने की एक खूबी के, ठीक है। एलन कहती है वजाहत के साथ कि वो उठना नहीं चाहता और वो जाना नहीं चाहता क्योंकि वो पहले ही वहाँ मौजूद होता है जहाँ वो मौजूद होना चाहता है, अपने फार्म के ऊपर, जो बिल्कुल वही जगह है जहाँ मैं जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं उसके साथ रहा करूँगी। वर्चू कहते हैं बच्चों सिर्फ। गेट अप एंड गो कहते हैं बच्चों जज्बा, ठीक है। प्रिसाइजली कहते हैं मुख्तसरन, एग्जैक्टली। स्पेल्डिंग, मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। Ellen, I don't think that's right. Isn't it more deadly? Whatever the exact quotation is, I stand by the sentiment. Spelling कहता है एक एहसान फरामोश बच्चा।
सांप से ज़्यादा नाशुक्रा होता है। एलन कहती है मैं नहीं समझती कि बात दुरुस्त है, यानी सही ज़रबुल मिसल में ऐसे नहीं बोला जाता इसे, क्या वो ज़्यादा मोहलिक नहीं होता? स्पेल्डिंग असल कौल ख्वा कुछ भी हो, इसमें एहसासात की तायद कर रहा हूँ। सरपेंट कहते हैं बच्चों अजदहा बड़ा सांप, कोटेशन कहते हैं इक़्तिबास, स्टैंड बाय कहते हैं बिलीविंग या एग्री करना, सेंटिमेंट कहते हैं बच्चों ख्याल। मिसेस स्पेल्डिंग प्लीज़ डोंट क्वारल, इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक। Spelling I never quarrel, I merely reason in my simple way with Miss Know It All here. Ellen, oh daddy, next you will tell me I should marry for money. Spelling there is nothing wrong with marrying a wealthy man. The horror of it has always eluded me. However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world, not a boy who plans to sit on a farm all his life growing peanuts. मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं बराए मेहरबानी अब आप झगड़े मत, इससे मुझे हमेशा सर दर्द हो जाता है। स्पेल्डिंग मैं हरगिज़ झगड़ नहीं रहा, बल्कि मैं सिर्फ तमाम इल्म रखने वाली इस बेटी को, इस मिस को अपने सादा अंदाज में दलील दे रहा हूँ। एलन, ओ डैडी, अब आप मुझे कहेंगे कि मुझे दौलत के लिए शादी भी नहीं करनी चाहिए। स्पेल्डिंग किसी दौलतमंद आदमी से शादी करने में कोई बुराई नहीं है, इस बात से खौफ मुझे कभी समझ नहीं आ सका। ताहम मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि तुम किसी मेहनती और पुरअज़्म शख्स से शादी करो जो दुनिया में अपना नाम पैदा करे, ना कि एक ऐसे लड़के से जो सारी उम्र अपने फार्म पर रहने और मूंगफलियां उगाने की मंसूबाबंदी करता रहा है। मेयरली कहते हैं बच्चों महज सिर्फ, रीज़न कहते हैं किसी नुक्ते की तौज़ीह करना, इल्यूडेड कहते हैं समझ ना आ सकना, और एम्बिशियस कहते हैं पुरअज़्म। एलन, English walnuts, spelling, will you stop correcting me? Ellen, but daddy, John grows walnuts. John enters breathlessly. John, come out. Quick, it's coming this way. It's going to land right here. Spelling, what's going to land? John, the spaceship. Look. Spelling, apparently you didn't hear my broadcast. The flying object is in question is a meteor, not a spaceship. John has gone out with Ellen. Spelling and Mrs. Spelling follow. Ellen, अंग्रेज़ी अखरोट। स्पेल्डिंग, क्या तुम मेरी इस्लाह करना बंद करोगी? एलन, लेकिन डैडी, जॉन अखरोट उगाता है। जॉन इस दौरान में हाँफते हुए अंदर आता है। जॉन, बाहर आएँ, जल्दी करें, ये इस तरफ आ रहा है, ये बिल्कुल यहाँ उतरने वाला है। स्पेल्डिंग, क्या उतरने वाला है? जॉन, खलाई जहाज़। देखें, स्पेल्डिंग, ज़ाहिर होता है कि तुमने मेरी नशरियात नहीं सुनी। उड़ता हुआ जिस्म जिसकी बात हो रही है ये एक शहाबिया है, खलाई जहाज़ नहीं। जॉन एलन के साथ बाहर जा चुका है। स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग उनके पीछे जाते हैं। अपेरेंटली कहते हैं बच्चों ज़ाहिरी तौर पर, मीटियोर कहते हैं शहाब साकिब। मिसेस स्पेल्डिंग, ओ माय, लुक, समथिंग इज़ फॉलिंग रॉजर, यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू? मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं ओ मेरी जान, देखो कोई चीज़ गिर रही है। रॉजर, तुम्हारा ख्याल नहीं है कि ये घर से टकराने वाला है? क्या तुम ऐसा सोचते हो? Spelling, the odds against being hit by a falling object that size are, I should say, roughly 10 million to 1. तो स्पेल्डिंग कहता है इस साइज़ की गिरती हुई चीज़ का निशाना बनने का इम्कान जो है वो 1 करोड़ में से 1 है। ठीक है। जॉन, 10 million to 1 और नॉट इट्स गोइंग टू लैंड राइट हेयर। कहता है 1 करोड़ में से 1 हो या ना हो, लेकिन ये इसी जगह उतरने वाला है और ये गिर नहीं रहा। स्पेल्डिंग, आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर। स्पेल्डिंग कहते हैं मुझे यकीन है कि एक शहाबिया है। मिसेस स्पेल्डिंग, शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, क्या हमें तहखाने में नहीं चले जाना चाहिए? स्पेल्डिंग, इफ़ इट्स नॉट अ मीटियोर इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मास हिस्टेरिया। अगर ये शहाबिया नहीं है तो ये एक फ़रेब नज़र है, एक अवामी पागलपन। Ellen, Daddy, it's a spaceship, real spaceship. I'm sure it is. Spelling, or maybe a weather balloon. Yes, that's what it is. General Pars said only yesterday. John, it's landing. Spelling, I'm going to call the police, the army, bolts inside. Ellen, oh look how it shines. John, here it comes. Mrs. Spelling, right in my rose garden. Ellen, maybe it's a balloon. John, no, it's a spaceship and right in your own backyard. Ellen, what makes it shine so? John, I don't know, but I am going to find out. Runs off toward the light. Ellen, oh darling, don't. John, please
John, John, come back. Spelling wide-eyed returns. अच्छा जी, स्पेल्डिंग कहता है कि ये शहाबिया नहीं है तो ये एक फ़रेब नज़र है और ये अवामी पागलपन है। तो एलन कहती है डैडी ये एक हकीकी खलाई जहाज़ है और मुझे यकीन है कि यही है। स्पेल्डिंग हो सकता है ये मौसमी गुब्बारा हो। हाँ ये वही है, जनरल पार्स ने कल ही तो कहा था। जॉन ये ज़मीन पर उतर रहा है। स्पेल्डिंग मैं पुलिस को बुलाता हूँ। फ़ौज तेज़ी से अंदर भाग जाता है। एलन ओ देखो ये कैसे चमक रहा है। जॉन यहाँ आ रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग यहाँ मेरे गुलाब के फूल के बाग में। एलन हो सकता है कि ये गुब्बारा हो। जॉन नहीं ये खलाई जहाज़ है और सीधा आपके अकबी सहन में। एलन ये इतना चमकदार क्यों है? जॉन मेरी जानता लेकिन मैं मालूम करने जा रहा हूँ। फिर वो रोशनी की तरफ भागता है। एलन कहती है कि मत जाओ बराए मेहरबानी जॉन, जॉन वापस आ जाओ। और इस दौरान में बच्चों स्पेल्डिंग जो है वो हैरत से फटी हुई आंखों के साथ वापस आता है। ऑड्स कहते हैं बच्चों इम्कानात, रफली कहते हैं अंदाज़न, सेलर कहते हैं ज़मीन दो स्टोर, ऑब्स्टिकल कहते हैं नज़र का धोखा, इल्यूजन धोखा, और मैथ्स कहते हैं वसी पैमाने पर, हिस्टेरिया कहते हैं शौक की दीवानगी, वाइड आइड कहते हैं हैरत से फटी हुई आंखों के साथ। Mrs. Spalding, Roger, it's landed right in my rose garden. Spalding, I got General Pars. He's coming over. He said they have been watching this thing. They don't know what it is. Ellen, you mean it's nothing of ours? Spalding, they believe it. Swallows hard. It's from outer space. Ellen and John's down there, Daddy. Get a gun or something. Spalding, perhaps we'll better leave the house until the army gets there. Ellen, we can't leave John. Spalding, I can. Peers nearsightedly, why? It's not much larger than a car. I'm sure it's some kind of meteor. Ellen, meteors are blazing hot. Spalding, that this is a cold one. Ellen, it's opening. The whole side's opening. Shouts, John, come back quick. Mrs. Spalding, why there's a man getting out of it. Sighs, I feel much better already. I'm sure if we ask him, he will move that thing for us. Roger, you ask him. मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं रॉजर ये तो सीधा मेरे गुलाब के फूलों के बाग में उतर रहा है। स्पेल्डिंग, मेरा राब्ता जनरल पार से हो गया है, वो आ रहा है इधर। उसने कहा है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं और वो नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है। एलन, आपका मतलब है कि हमारी चीज़ों में से नहीं है। स्पेल्डिंग, वो यही यकीन रखते हैं, बमुश्किल मानता है कि ये बैरूनी खला से है। एलन, और जॉन वहाँ नीचे है डैडी, बंदूक या कोई चीज़ ले आओ। स्पेल्डिंग, शायद हमारे लिए बेहतर ये होगा कि फ़ौज के आने तक हम घर छोड़ दें। एलन, हम जॉन को नहीं छोड़ सकते। स्पेल्डिंग कहता है मैं छोड़ सकता हूँ। थोड़ी आंखें बंद करके घूरता है। ये तो एक कार से बड़ा नहीं है, मुझे यकीन है कि किसी किस्म का शहाबिया है। एलन, शहाबिये चमकदार और गर्म होते हैं। स्पेल्डिंग, ये एक ठंडा शहाबिया है। एलन, ये खुल रहा है, पूरा एक पहलू खुल रहा है। चीखती है, जॉन वापस आ जाओ, जल्दी करो। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं इसमें से एक आदमी बाहर निकल रहा है। ठंडा सांस भरती है। मैं पहले ही बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि अगर हम इसे कहते हैं तो वो हमारे कहने पर यह चीज़ हटा देगा। रॉजर, तुम इसे कहो। स्पेल्डिंग ominously, if it's really a man. Alan, John's shaking hands with him, calls, John, darling, come on up here, Mrs. Spalding, and bring your friend. Spalding, there's something wrong with the way that creature looks. If it is a man and not a monster. Mrs. Spalding, he looks perfectly nice to me. स्पेल्डिंग कहते हैं खौफजदा अंदाज में, क्या ये हकीकत में एक आदमी है? एलन कहता है जॉन इसे हाथ एलन कहती है जॉन इसे हाथ मिला रहा है। वो उसे आवाज़ देती है कि जॉन इधर आ जाओ। मिसेस स्पेल्डिंग, अपने दोस्त को भी ले आओ। स्पेल्डिंग कहता है जिस तरह ये मखलूक नज़र आ रही है इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर ये एक आदमी है और एक अफरीत नहीं है तो मिसेस स्पेल्डिंग, मुझे तो मुकम्मल तौर पर बड़ा ही नफीस आदमी नज़र आ रहा है। ब्लेजिंग कहते हैं बहुत चमकते हुए। ओमनियसली कहते हैं बच्चों डराते हुए। क्रीचर कहते हैं जानदार मखलूक। लुक्स कहते हैं दिखाई देता है। मॉन्स्टर खौफनाक जानवर वगैरह। जॉन एंड द विजिटर अपीयर। द विजिटर इज़ इन हिज 40s, a mild, pleasant looking man with side whiskers and dressed in the fashion of 1860. He pauses when he sees the three people. In silence for a moment, they stare back at him, equally interested. Visitor, I seem to have made a mistake. I am sorry. I would better go back and start over again.
जॉन और मेहमान सामने से आते हैं। मेहमान 40 साल की उम्र का लगता है, जिससे 40 के जो होते हैं 40s में, और एक नरम और खुश मिजाज दिखाई देने वाला आदमी लगता है वो। उसके गालों पर मूंछें हैं और वो 1860 के फैशन का लिबास पहने हुए होता है। और जब वो इन 3 लोगों को देखता है तो खामोशी से चंद लम्हे के लिए रुकता है। वो उसकी तरफ इतनी ही दिलचस्पी से देख रहे होते हैं। मेहमान कहता है, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है और मुझे अफसोस है, बेहतर है कि मैं वापस जाऊं और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर दूं। माइल्ड कहते हैं बच्चों शरीफ तबा, प्लेजेंट लुकिंग, और साइड विस्कर्स कहते हैं साइड वाली मूछें। ठीक है, अच्छा जी। स्पेलिंग माय डियर, यू हैव ओनली जस्ट अराइव्ड, कम इन, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेयर दिस इज़ मिस्टर। विजिटर कहता है जी क्रेटन, this is the wrong costume, isn't it? Spelling wrong for what, Creighton? For the country and the time. Spelling, well, it's a trifle old fashioned, Mrs. Spelling, but really awfully handsome. Creighton, thank you. Mrs. Spelling to husband, ask him about moving that thing off my rose bed. Spelling leads him all into living room. Spelling, come on in and sit down. You must be tired after your trip. स्पेल्डिंग कहते हैं, मोहतरम जनाब, आप अभी भी तो पहुँचे हैं, अंदर तशरीफ़ लाएँ। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी खुशी की बात है। जनाब। मेहमान कहता है क्रेटन, यानी अपना नाम बताता है। तो फिर कहता है कि ये गलत लिबास है, क्या ये गलत नहीं है? स्पेल्डिंग पूछते हैं किस लिए गलत है? क्रेटन कहता है आपके मुल्क और वक्त के लिहाज से। स्पेल्डिंग कहते हैं हाँ, थोड़ा सा ज़रा पुरानी तर्ज का है मिसेस स्पेल्डिंग, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्रेटन उसका शुक्रिया अदा करता है। मिसेस स्पेल्डिंग अपने खावन से कहती है, उससे कहो ये चीज़ मेरे गुलाब के बाग से हटा ले। स्पेल्डिंग जब उन सबको मेहमानों के कमरे में ले जाते हैं, स्पेल्डिंग कहते हैं अंदर तशरीफ़ लाइए और बैठ जाएं। अपने सफ़र के बाद आप यकीनन थक चुके होंगे। ट्रिफल कहते हैं बच्चों थोड़ा सा, और ऑफुली कहते हैं बहुत ज़्यादा। लिविंग रूम बैठक, और डिलाइटेडली खुशी से। ठीक है, अच्छा जी। क्रेटन, यस आई एम अ लिटिल लुकिंग अराउंड डिलाइटेडली। ओ इट्स बेटर देन आई वुड होप्ड। स्पेल्डिंग बेटर, व्हाट्स बेटर? Creighton, the house, that's what you call it, or is this an apartment? Spelling, this is the house in the state of Maryland, USA. Creighton, in the late 20th century. Creighton कहता है हाँ जी, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, लेकिन खुशी से इर्द गिर्द देखते हुए कहता है, ओह ये तो मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा है। स्पेल्डिंग कहता है अच्छा, क्या अच्छा है? क्रेटन, घर, आप इसे यही कहते हैं ना, या क्या ये एक अपार्टमेंट है, फ्लैट है? स्पेल्डिंग, ये अमेरिका की रियासत मैरीलैंड में वाकई एक घर है। क्रेटन, 20वीं सदी के आखिर में। और फिर डिलाइटेडली कहते हैं बच्चों खुशी से। अपार्टमेंट कहते हैं फ्लैट को। टू थिंक दिस इज़ रियली द 20th century, आई मस्ट सेट डाउन अ मोमेंट एंड कलेक्ट माई सेल्फ द रियल थिंग। ही सेट्स डाउन। एलन, यू आर नॉट एन अमेरिकन, आर यू? Creighton, what a nice thought. No, I am not. John, you sound more English. Creighton, do I? Is my accent very bad? जॉन, नो इट्स क्वाइट गुड। अच्छा जी, अब वो सोचने के अंदाज़ में, ये सोचने के लिए कि वाकई ये 20वीं सदी है, मुझे कुछ देर के लिए बैठना चाहिए और अपने हवास बहाल कर लेने चाहिए। असल बात ये है। वो बैठ जाता है। एलन, तुम अमेरिकन नहीं हो, क्या तुम हो? क्रेटन, कैसा उम्दा ख्याल है, नहीं मैं अमेरिकन नहीं हूँ। नहीं, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। जॉन, तुम्हारा लहजा ज़्यादा इंग्लिश है। क्रेटन, क्या मेरा लहजा बहुत बुरा है? जॉन, नो इट्स क्वाइट गुड, नहीं ये तो बहुत अच्छा है। मोमेंट कहते हैं बच्चों लम्हा। कलेक्ट कहते हैं जमा करना, आवाज़ बहाल करना। एक्सेंट कहते हैं लहजे को। स्पेल्डिंग, वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर क्रेटन? क्रेटन, एवेसिवली, अनदर प्लेस। स्पेल्डिंग, ऑन दिस अर्थ ऑफ कोर्स। Creighton, no, not on this planet. Ellen, are you from Mars? Creighton, oh dear, no, not Mars. There's nobody on Mars, at least no one I know. Ellen, I'm sure you are teasing us and this is all some kind of publicity stunt. जॉन कहता है नहीं ये बहुत अच्छा है। स्पेल्डिंग कहता है आप कहाँ से तशरीफ़ लाए मिस्टर क्रेटन? क्रेटन जवाब देने से गुरेज करते हुए कहता है मैं एक दूसरी जगह से आया हूँ। स्पेल्डिंग कहता है ज़ाहिर है ज़मीन से ही। तो क्रेटन कहते हैं नहीं, इस सैयारे से नहीं। तो एलन कहती है क्या तुम मरीख से हो? तो क्रेटन कहता है वो मोहतरमा नहीं, मरीख से नहीं, मरीख पर कोई भी नहीं है, कम अज़ कम मेरे इल्म के मुताबिक कोई नहीं है। एलन, मुझे यकीन है कि आप हमें तंग कर रहे हैं और ये सब एक किस्म का दिखावे का अमल है।
इवेसिवली कहते हैं बच्चों जवाब देने से गुरेज करते हुए, प्लानट कहते हैं सैयारा, ठीक है, डार्क हेवनली बॉडी। मार्स जो है वो नाम है एक प्लानट का, मरीख कहते हैं आप उसे, और स्टंट कहते हैं दिखलावे का अमल। Cretan, no, I really am from another place. Spelling, I don't suppose you would consent to my interviewing you on television. Cretan, I don't think your authorities will like that. They are terribly upset as it is. Spelling, how do you know? Cretan कहते हैं नहीं, मैं हकीकत में दूसरी जगह से आया हूँ। स्पेल्डिंग कहते हैं मैं नहीं समझता कि आप टेलीविज़न पर मुझे अपना इंटरव्यू देने पर राज़ी हो जाएंगे। क्रेटन कहते हैं मेरा ख्याल नहीं है कि आपके हुकाम इस बात को पसंद करेंगे, और जैसे कि जाहिर है कि वो खौफनाक हद तक परेशान है। स्पेल्डिंग आप किस तरह जानते हैं? कंसेंट कहते हैं रजामंदी, अथॉरिटीज़ कहते हैं आला हुकाम, और टेरेबली कहते हैं बहुत ज़्यादा। Cretan, well, I pick up things. For instance, I know that in a few minutes a number of people from your army will be here to question me, and they, like you, are torn by doubt. Spelling, how extraordinary. Alan, why did you come here? Cretan, simply a visit to your small planet. Cretan कहते हैं मैं जानता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जानता हूँ कि आपकी फ़ौज के बहुत सारे लोग यहाँ मुझसे सवालात करने के लिए आ जाएंगे, आपकी तरह वो भी शक शुबा में गिरे हुए हैं। स्पेलिंग कहते हैं कितनी गैर मामूली बात है। तो एलन कहती है तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्रेटन, महज आपके छोटे से सैयारे की सैर करने के लिए। इंस्टेंस कहते हैं मिसाल, टॉन कहते हैं बच्चों घिरे हुए होना, एक्स्ट्रॉर्डनरी कहते हैं गैर मामूली। कहते हैं आई एम सिंपली अ विजिट टू ए स्मॉल प्लानट, आई हैव बीन स्टडिंग इट फॉर ईयर्स, in fact one might say you people are my hobby, especially this period of your development. John, are you the first person from your planet to travel in space like this? Cretan, oh my no, everyone travels who wants to, it's just that no one wants to visit you. I can't think why. I always have. You would be surprised what a thorough study I have made. Recites. कहते हैं मैं कई सालों से आपके इस प्लानट का मुताला कर रहा हूँ, और अब हकीकत में आप ये बात कह सकते हैं कि आप लोग मेरा मशगला हैं, ख़ास तौर पर आपकी तरक्की का जो ये दौरानिया है, ठीक है, जो है ये मुझे ज़्यादा पसंद है आपका। और क्या जॉन उससे पूछते हैं कि आप अपने सैयारे से खला में इस तरह से सफ़र करने वाले पहले इंसान हैं? क्रेटन कहते हैं ओ नहीं, हर कोई जो चाहता है सफ़र करता है, ये बात सिर्फ ये है कि कोई भी आप लोगों को मिलना नहीं चाहता। अब मुझे इल्म नहीं कि क्यों, मैं हमेशा चाहता रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने कितना गहरा मुतालिया किया है। वो सुनाता है फिर, द प्लानट अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 5 कॉन्टिनेंट्स with a number of large islands. It is mostly water. There is one moon. Civilization is only just beginning. Spelling just beginning? My dear sir, we have had. Cretan blandly, you are only in the initial stages, the most fascinating stages as far as I am concerned. I do hope I don't sound patronizing. कहता है जी आपका जो सयारा ज़मीन है ये बहुत से जजीरों के साथ 5 बराज़मों में तकसीम है, और उसमें ज़्यादा पानी है और एक चाँद है, और यहाँ पे तहज़ीब जो है वो अभी शुरू हो रही है। तो स्पेल्डिंग उसकी बात काटते कहता है अभी शुरू हो रही है मोहतरम जनाब, हम तो बहुत तहज़ीब याफ्ता हैं। क्रेटन बड़ी खुशखलकी से कहता है आप सिर्फ इब्तदाई मरहले में हैं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है इंतहाई दिलकश मराहिल में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़्यादा सरपरस्ताना अंदाज में बात नहीं कर रहा। डेवलपमेंट कहते हैं बच्चों तरक्की, पेशरफ्त। कॉन्टिनेंट कहते हैं बर आज़म। सिविलाइजेशन कहते हैं पुख्ता माशरा, सकाफ़ती और दिमागी तौर पर। इनिशियल कहते हैं इब्तदाई, और फैसिनेटिंग कहते हैं दिलकश, दिल लुभाने वाला। पैट्रोनाइजिंग कहते हैं बच्चों मगरूर या हक़ीर जानते हुए। एलन, well, we are very proud. Cretan, I know, and that's one of your most endearing primitive traits. Oh, I can't believe I am here at last. General Pars, a vigorous product of the National Guard, and his aide enter. Pars, all right, folks, the place is surrounded by troops. Where is the monster? Cretan, I, my dear general, am the monster. एलन कहती है ठीक है, हम बहुत फ़ख्र करते हैं। क्रेटन कहता है मैं जानता हूँ ये आपकी महबूब तरीन कदीम खसूसियात में से एक है। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस दौरान बच्चों जनरल पार्स जब अपने नेशनल गार्ड के ताकतवर फ़र्द है, तो वो और उसका नाइब जब दाखिल होते हैं, जनरल पार्स कहते हैं लोगों सब ठीक है, ये पूरी जगह फ़ौजियों के घेरे में है, और वो अफरीद कहाँ है? क्रेटन, मोहतरम जनरल मैं हूँ अफरीद। प्रिमिटिव कहते हैं बच्चों कदीम, ठीक है, और ट्रेड कहते हैं खसूसियत। सराउंडेड कहते हैं घेरे में होना। पार्स, व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी ड्रेस पार्टी? क्रेटन, आई वुड होप टू बी इन द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, एज यू सी आई एम अबाउट 100 years too late.
पार्स उससे पूछता है तुमने ये लिबास क्यों पहना हुआ है, क्या कोई फैंसी ड्रेस पार्टी है। क्रिटन कहता है मुझे उम्मीद थी कि मेरा लिबास वक्त के मुताबिक होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तकरीबन 100 साल ताख़ीर से पहुँचा हूँ। Pars, Roger, who is this joker? Spelling, this is Mr. Creighton, General Pars. Mr. Creighton arrived in that thing outside. He is from another planet. Pars, I don't believe it. Alan, it's true. We saw him get out of the flying saucer. Pars to aid Captain, go down and look at the ship, but be careful, don't touch anything, and don't let anybody else near it. Aid goes. So you are from another planet. तो क्रेटन जो है वो कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा लिबास वक्त के मुताबिक होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तकरीबन 100 साल ताख़ीर से पहुंचा हूँ। तो पार्स जब वो पूछता है रॉजर ये मस्खरा कौन है, स्पेल्डिंग कहता है ये मिस्टर क्रेटन है। जनरल पार्स, मिस्टर क्रेटन बाहर खड़ी हुई चीज़ में यहाँ पे आए हैं और ये दूसरे सैयारे से आए हैं। पार्स, मैं इस पर यकीन नहीं करता। एलन, ये सच है, हमने इन्हें उड़न तश्तरी से बाहर निकलते हुए देखा है। पार्स अपने नाइब से कहता है कैप्टन बाहर जाओ और जहाज़ का मुआयना करो, लेकिन मोहतात रहना, किसी चीज़ को छूना मत और किसी दूसरे शख्स को इसके नज़दीक भी नहीं आने देना। नाइब बाहर चला जाता है। अच्छा तो तुम एक दूसरे सैयारे से हो। क्रेटन, यस माई दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेटल, द वंस यू यूज टू वेयर यू नो विद द फीदर्स ऑन टॉप। पार्स, दैट वॉज 500 years ago. Are you sure you are not from the earth? Cretan, yes. Pars, well, I am not. You have got some pretty tall explaining to do. Cretan, anything to oblige. Pars, all right. Which planet? Cretan, none that you have ever heard of. Pars, where is it? Cretan, you wouldn't know. Pars, this solar system? Cretan, no. Pars, another system? Cretan, yes. Pars, look, I don't want to play games. I just want to know where you are from. The law requires it. अब क्रेटन कहते हैं हाँ मेरा ये बहुत उम्दा यूनिफॉर्म है, लेकिन मैं धात से बने हुए कुछ तरजीह देता हूँ जो तुम लोग पहना करते थे, आप जानते हैं जिसकी चोटी पर होते थे। पार्स, वो 500 साल पहले की थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ज़मीन से नहीं हो? क्रेटन, हाँ। पार्स, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है, तुम्हें इसकी काफ़ी लंबी वजाहत करना होगी। क्रेटन, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पार्स, ठीक है, आप किस सैयारे से हैं? क्रेटन, जिनके बारे में तुमने सुन रखा है उनमें से कोई भी नहीं। पार्स, ये कहाँ पे है? क्रेटन, तुम नहीं जानते। जनरल पार्स, इस निज़ाम शमसी में? क्रेटन, नहीं। पार्स, किसी दूसरे निज़ाम में? क्रेटन, हाँ। पार्स, देखो मैं कोई गेम नहीं खेलना चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, हमारा कानून ये मुतालबा करता है। क्रेटन, फ्लाइंग सॉसर कहते हैं बच्चों उड़न तश्तरी, प्रेटी कहते हैं दिलकश, ऑब्लाइज कहते हैं मजम्मत करना, सोलर कहते हैं शमसी। क्रेटन, इट्स पॉसिबल दैट आई कुड एक्सप्लेन इट टू अ मैथमेटिशियन but I am afraid I couldn't explain it to you. Not for another 500 years, and by then, of course, you would be dead because you people do die, don't you? Pars, what? Pars, what? Cretan, poor fragile butterflies, such brief little moments in the sun. You see, we don't die. Pars, you will die all right if it turns out you are a spy or a hostile alien. Cretan, I am sure you wouldn't be so cruel. Aid returns. He looked disturbed. क्रेटन कहता है जी मुमकिन है मैं किसी रियाजीदान को तो समझा सकूं, मुझे खौफ है कि मैं आपको नहीं समझा सकता, मज़ीद 500 साल तक भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तक आप यकीनन मर चुके होंगे, क्योंकि आप लोग मर जाते हैं। क्या नहीं मरते? जनरल पार्स, क्या? क्रेटन कहता है बेचारी नाजुक तितलियाँ, इस सूरज के नीचे इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है और आप जानते ही हैं कि हम तो नहीं मरते। पार्स, तुम बिल्कुल मर जाओगे अगर साबित हो जाता है कि तुम कोई जासूस या गैर मुल्की मुखालिफ हो। क्रेटन, मुझे यकीन है कि तुम इतने जालिम नहीं होंगे। नाइब इस दौरान में वापस आ जाता है, वो थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। फ्रेजाइल कहते हैं नाजुक, टर्न्स आउट कहते हैं पता चलता है, स्पाई कहते हैं बच्चों जासूस, हॉस्टाइल कहते हैं मुखालफत में, और एलाइन कहते हैं परदेसी, एलियन गैर मुल्की। अच्छा जी। पार्स, व्हाट डिड यू फाइंड इट? आई एम नॉट श्योर जनरल। जनरल पार्स से कहता है तुमने क्या देखा? तो नाइब कहता है जी यकीन से मैं कुछ नहीं कह सकता जनरल। Pars heavily, then you do your best to describe what the object is like. 8. Well, it's elliptical with a 14-foot diameter and it's made of an unknown metal which shines, and inside there isn't anything. Pars, isn't anything? 8. There's nothing inside the ship, no instruments, no food, nothing. Pars to Cretan, what did you do with your instrument board?
Written with my what? Oh, I don't have one. Pars, how does the thing travel? Written, I don't know. पार्स कहते हैं तुमने क्या देखा? नाइब कहता है जी यकीन से कुछ नहीं कहता था जनरल। पार कहता है बोझलपन से अपनी पूरी कोशिश करो और बताओ कि वो चीज़ कैसी है। उसका नाइब कहता है ये बेज़वी चीज़ है जिसका कुतर तकरीबन 14 फुट है और ये एक नामालूम धात से बनी हुई है जो चमकती है और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। पार्स, कोई भी चीज़ नहीं है नाइब, जहाज़ के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आलात नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं। जनरल पार्स क्रेटन से कहता है जहाज़ में तुमने अपने आलात वाले बोर्ड को कहाँ किया हुआ है? क्रेटन, अपने किस को? ये तो मेरे पास नहीं है। पार्स, ये चीज़ कैसे सफ़र करती है? क्रेटन कहते हैं मुझे इल्म नहीं है। एलिप्टिकल कहते हैं बच्चों बैजवी, अंडे की तरह, और डायमीटर कहते हैं कुतर, थिकनेस जो होती है उसकी। पार्स, यू डोंट नो। नाउ लुक मिस्टर, you are in pretty serious trouble. I suggest you do a bit of cooperating. You come, you traveled here from outer space in a machine with no instruments. Written, well, these cars are rather common in my world, and I suppose once upon a time I must have known the theory on which they operate, but I have long since forgotten. After all, General, we are not mechanics, you and I. Pars, Roger, do you mind if we use your study? Spelling, not at all. Not at all, General. Pars, Mr. Creighton and I are going to have a chat. To aid, put in a call to the Chief of Staff. Aid, yes, General. Spelling rises, leads Creighton and Pars into next room, a handsomely furnished study, many books and a globe of the world. Spelling, this way, gentlemen. Creighton sits down comfortably beside the globe, which he twirls thoughtfully. At the door, Spelling speaks in a low voice to Pars. I hope I will be the one to get the story first. Tom. पार्स कहते हैं तुम नहीं जानते, अब देखो मिस्टर, तुम सख्त मुसीबत में हो, मेरा मशवरा है कि तुम थोड़ा सा ताउन करो। तुम दावा करते हो कि तुम बैरूनी खला से ऐसी मशीन में सफ़र करके आए हो जिसमें कोई आलात नहीं है। क्रेटन, ये कारें मेरी दुनिया में आम हैं और मेरा ख्याल है कि एक वक्त में मुझे ज़रूर इस इल्म असूल का इल्म था जिसके मुताबिक ये चलती हैं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ये भूल चुका हूँ। बहरहाल जनरल, मैं और आपके मैकेनिक तो हैं भी नहीं। पार्स, रॉजर, अगर हम तुम्हारे मुताले वाला कमरा इस्तेमाल करें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? स्पेल्डिंग, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जनरल। पार्स, मिस्टर क्रेटन और मैं बातचीत के लिए जा रहे हैं, अपने नाइब से चीफ ऑफ द स्टाफ को टेलीफोन करो। नाइब, ठीक है जनरल। स्पेल्डिंग उठता है, क्रेटन और जनरल को दूसरे कमरे में लेकर जाता है। यह खूबसूरती से आरास्ता किया हुआ मुताले का कमरा है जिसमें बहुत सी किताबें और दुनिया का ग्लोब पड़ा हुआ है। स्पेल्डिंग, इस तरफ मोअज़्ज़ज़ हज़रात। क्रेटन आराम से ग्लोब के पास बैठ जाता है जिसे वो गौर से बात करते हुए घुमाता रहता है। दरवाजे पर स्पेल्डिंग जनरल से धीमी आवाज़ में कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जानने वाला पहला शख्स मैं हूँगा, टॉम। पार्स, देयर इज़ंट एनी स्टोरी, कंप्लीट सेंसरशिप। आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज़ अंडर मार्शल लॉ. I have a hunch we are in trouble. He shuts the door. Spelding turns and rejoins his family. Ellen, I think he is wonderful, whoever he is. Mrs. Spelding, I wonder how much damage he did to my rose garden. जनरल पार्स कहते हैं कोई कहानी नहीं है, मुकम्मल सेंसरशिप है, मुझे अफसोस है, लेकिन ये घर माशाल्लाह के तहत है और मेरा अंदाज़ा है कि हम मुसीबत में हैं। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और स्पेल्डिंग वापस आ जाता है और अपने ख़ानदान के अफराद के साथ शामिल हो जाता है। एलन, आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हू एवर ही इज़। एलन, मेरा ख्याल है कि वो जो कोई भी है बड़ा अजीब व गरीब है। मिसेस स्पेल्डिंग, आई वॉन्डर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज़ गार्डन। मैं परेशान हूँ उसने मेरे गुलाबों के बाग को कितना नुकसान पहुँचाया है। चैट कहते हैं बच्चों गपशप, और ट्विल्स कहते हैं घुमाता है। थॉटफुली कहते हैं ध्यान के साथ। सेंसरशिप कहते हैं एहतसाब, और हंच कहते हैं अंदाज़ा होना। जॉन, इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज़ रियली फ्रॉम आउटर स्पेस। नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो नथिंग बॉय, दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली। मिसेस स्पेल्डिंग, इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट डियर? स्पेल्डिंग, वॉट? Mrs. Spelding, is he spending the night? Spelding, oh yes, I suppose he will be. Mrs. Spelding, then I would better go make up the bedroom. He seems perfectly nice to me. I like his whiskers. They are so very comforting, like grandfather Spelding's. She goes. Spelding bitterly, I know this story will leak out before I can interview him. I just know it. Ellen, what does it mean? We are under martial law. Spelding, it means we have to do what General Pars tells us to do. He goes to the window as a soldier passes by. See,
John, I wish I would taken a closer look at that ship when I had the chance. Ellen, perhaps he will give us a ride in it. John, traveling in space, just like those stories, intergalactic drive stuff. Spelling if he is not an imposter. जॉन कहता है जी यकीन करना वाकई कि वो बैरूनी खला से आया यकीनन मुश्किल है, कोई आलात वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लड़के, वो साइंसी एतबार से ज़रूर ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगे। मिसेस स्पेल्डिंग क्या वो रात यहाँ बसर कर रहा है? स्पेल्डिंग क्या मिसेस स्पेल्डिंग क्या वो रात यहाँ बसर कर रहा है? स्पेल्डिंग ओ हाँ हाँ मुझे उम्मीद है कि वो बसर करेगा। मिसेस स्पेल्डिंग भी बेहतर है कि मैं जाकर बेडरूम दुरुस्त कर दूँ, मुझे पूरी तरह बहुत अच्छा नज़र आता है, मैं उसकी मूँछें बहुत पसंद करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा दादा स्पेल्डिंग की तरह आरामदेह है। वो चली जाती है। स्पेल्डिंग तलखी से मैं जानता हूँ कि मेरे इंटरव्यू करने से पहले इसकी कहानी अफशा हो जाएगी और मैं बिल्कुल जानता हूँ। एलन, इसका क्या मतलब है डैडी कि हम माशाल्लाह के तहत हैं? स्पेल्डिंग इसका मतलब है कि हमें वो कुछ करना पड़ेगा जो जनरल पार्स हमें बताएगा। जैसे ही एक फ़ौजी गुजरता है वो खिड़की की तरफ जाता है, देखो जॉन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मौका मिले तो मैं जहाज़ को करीब से देखूं। एलन, शायद वो हमें इसमें सवारी भी कराए। जॉन, खला में सफ़र करना बिल्कुल उन कहानियों की तरह, तुम जानती हो कहकशाओं के दरमियान सफ़र के बारे में मालूमात। स्पेलिंग कहीं वो एक दगाबाज ना हो। मेकअप कहते हैं बच्चों इंतज़ाम करना। इंटरगैलेक्टिक कहते हैं कहकशाओं के दरमियान। ड्राइव कहते हैं तहरीक। और इम्पोस्टर कहते हैं बनावट करने वाला फरेबी आदमी। Ellen, I have a feeling he isn't. John, well, I better call the family and tell them I'm all right. He crosses to telephone by the door which leads into hall. Aid, I'm sorry, sir, but you can't use the phone. Spelling, he certainly can. This is my house. Aid, mechanically, this house is a military reservation until the crisis is over. Order General Pars, I'm sorry. एलन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो दगाबाज है। जॉन, ठीक है, बेहतर होगा कि मैं अपने घर वालों को फ़ोन करूं और उन्हें बता दूं कि मैं ठीक ठाक हूं। वो दरवाजे के पास टेलीफोन की तरफ जाता है जो कि हॉल में खुलता है। तो नाइब कहते हैं मुझे अफसोस है जनाब, लेकिन आप टेलीफोन नहीं कर सकते। स्पेलिंग वो यकीनन कर सकता है, ये मेरा घर है। नाइब मैकेनिकी अंदाज में, जब तक बहरान ख़त्म नहीं हो जाता ये घर फ़ौज के लिए वक्फ़ है और जनरल पावर्स का हुक्म है और मुझे अफसोस है। रिजर्वेशन कहते हैं बच्चों वक्फ़शुदा जगह, और क्राइसिस कहते हैं नाजुक लम्हा। जॉन, हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम? Aid, only General Pars can help you. You are also forbidden to leave this house without permission. Spelling, you can't do this. Aid, I'm afraid, sir, we have done it. Ellen, isn't it exciting? Cut to study. Pars, are you deliberately trying to confuse me? Crichton, not deliberately, no. Pars, we have gone over and over this for 2 hours now, and all that you told me is that you are from another planet. In another solar system. Crichton, in another dimension, I think that's the word you use. तो जॉन कहता है मैं घर में ये बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ कैसे फ़ोन करूँ। नाइब कहता है उसे जनरल पार्स ही आपकी मदद कर सकते हैं, आपको बगैर इजाज़त के इस घर से भी बाहर निकलना मना है। स्पेलिंग, आप ये नहीं कर सकते। नाइब, मुझे अफसोस है जनाब, हमने ये कर दिया है। एलन, क्या ये पुरलुत्फ़ बात नहीं? फिर मुताले के कमरे का मंजर आ जाता है बच्चों, कट करके सीन वहाँ चेंज हो जाता है। पावर्स कहते हैं क्या तुम मुझे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? कहते नहीं, जानबूझकर नहीं कर रहा। पावर्स, अब तक हम जितनी बातें करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और तुमने जो सब कुछ मैं बताया वो ये कि तुम एक दूसरे निज़ाम शमसी में एक दूसरे सैयारे से हो। क्रिटन, एक दूसरी हदूद से, मेरा ख्याल है ये वो लफ्ज़ हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। फॉरबिडन कहते हैं मना किया हुआ, और एक्साइटिंग कहते हैं पुरजोश। डेलिबरेटली कहते हैं इरादतन, और डायमेंशन कहते हैं हद या पहलू। पार्स, इन अनदर डायमेंशन एंड यू हैव कम हेयर एज अ टूरिस्ट। तो वो कहते हैं दूसरी हदूद से और तुम यहाँ एक सयाह के तौर पर आए हो। Written up to a point, yes, what did you expect? Pars, it's my job to guard the security of this country. Written, I am sure that must be very interesting work. Pars, for all I know, you are a spy sent here by an alien race to study us, preparatory to invasion. तो क्रिटन कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, क्या तुम क्या तवक्को करते हो? पार्स, इस मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फ़र्ज़ है। क्रिटन कहते हैं मुझे यकीन है कि यह यकीनन दिलचस्प काम होगा। पार्स, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक जासूस हो जिसको किसी बैरूनी कौम ने हमले की तैयारी से पहले हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा है। एलियन होते हैं बच्चों गैर मुल्की। प्रिपरेटरी कहते हैं तैयारी के साथ। इन्वेजन कहते हैं चढ़ाई। क्रिटन, ओह नन ऑफ माई पीपल
would dream of invading you. Pars, how do I know that's true? Cretan, you don't. So I suggest you believe me. I should also warn you. I can tell what's inside. Pars, what's inside? Cretan, what's inside your mind? Pars, you are a mind reader. Cretan, I don't really read it. I hear it. Pars, what am I thinking? Written that I am either a lunatic from the earth or a spy from another world. Pars correct, but then you could have guessed that. Franz, what I am thinking now. Written, you are making a picture, 3 silver stars, you are painting them on your shoulder instead of the 2 stars you now wear. रिटर्न कहते हैं मेरे लोगों में से तो कोई तुम पर हमला करने का ख्वाब भी नहीं देखता. पार्स कहते हैं हमें किस तरह से मालूम हो गई बात सच है. रिटर्न कहते हैं तुम नहीं जानते, इसलिए मेरा मशवरा है कि मुझ पर यकीन कर लो. मुझे भी ये तंबीह कर देनी चाहिए कि मैं क्या कर सकती, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है. पर पार्स कहते हैं अंदर से क्या मतलब है. क्रिटन तुम्हारे जहन में क्या है. पार्स कहते हैं तुम जहन को पढ़ने वाले हो. क्रिटन मैं हकीकत में उसे पढ़ता नहीं सुनता हूँ. पार्स कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ. क्रिटन कि ये मैं या तो दुनिया से आने वाला कोई पागल शख्स हूँ या दूसरी दुनिया का कोई जासूस हूँ. पार्स कहते हैं दुरुस्त है, लेकिन तुमने इस बात का अंदाज़ा कर लिया होगा. तेवरी चढ़ाते हैं और अब मैं क्या सोच रहा हूँ. क्रिटन तुम एक तस्वीर बना रहे हो, चांदी के 3 सितारे. तुम उनको अपने कंधों पर टांक रहे हो बजाय उन 2 सितारों के जो अब लगा रखे हैं. यूनाटिक कहते हैं बच्चों पागल. स्पाई कहते हैं जासूस. फ्रोन्स कहते हैं तेवरी चढ़ाना. पार्स स्टार्टल्ड. दैट्स राइट, आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई प्रमोशन. Written, if there's anything I can do to hurry it along, just let me know. Pars, you can tell me why you are here. Written, well, we don't travel much, my people. We used to, but since we see everything through special monitors and recreators, there is no particular need to travel. However, I am a hobbyist. I love to gad about. Pars, taking notes. Are you the first to visit us? Pars चौंक जाता है, कहता है आप तो ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा था. क्रिटन कहता है अगर इस मामले को जल्द निपटाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बता दें. पार्स तुम ये कर सकते हो कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो. क्रिटन कहते हैं खूब हमारे लोग जहाँ ज़्यादा सफ़र नहीं करते, हम सफ़र किया करते थे, लेकिन चूँकि जब से हम ख़ास मॉनिटर्स और रिक्रिएटर्स की मदद से देख लेते हैं तो सफ़र करने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही है. ताहम मैं चूँकि मुशागल रखने वाला शख्स हूँ और मैं बेकार में घूमते फिरना पसंद करता हूँ. पार्स लिखते हुए क्या तुम हमारे पास आने वाले पहले शख्स हो. सेंस कहते हैं बच्चों क्योंकि. मॉनिटर्स कहते हैं द विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑफ कंप्यूटर. और रिक्रिएटर्स कहते हैं कि दोबारा साख्त करने वाले आले. और पर्टिकुलर कहते हैं मखसूस. और गैड कहते हैं मटर गश्त करना. Written, oh no, we started visiting you long before there were people on the planet. However, we are seldom noticed on our trips. I am sorry to say I slipped up coming in the way I did. But this visit was all rather impromptu. I am a creature of impulse, I fear. क्रिटन कहता जी ओ नहीं, हमने तुम्हारे पास सैयारे पर लोगों के पैदा होने से पहले बहुत पहले आना शुरू किया था, लेकिन हमें हमारे सफ़रों में बहुत कम देखा जा सकता है. मुझे कहता हुआ अफसोस होता है कि मैं अपने रास्ते पर चलता हुआ भटक गया, लेकिन मेरा ये आना बगैर किसी तैयारी के था. हंसता हुआ कहता है कि मैं तो मनमौजी आदमी हूँ और मुझे डर है. इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं बच्चों बगैर तैयारी के. और इम्पल्स कहते हैं ख्वाहिश. एड लुक्स इन. एड जो उसका नायब बंदा झांकता है. एड चीफ ऑफ स्टाफ ऑन द टेलीफोन जनरल. Pars picks up phone. Hello, yes sir. Pars speaking. I am talking to him now. No sir, no sir. No, we can't determine what method of power was used. He won't talk. Yes sir. I will hold him here. I have put the house under martial law. Belongs to a friend of mine, Roger Spalding, the TV commentator. Roger Spalding, the TV. What? Oh no, I am sure he won't say anything. Who? Oh yes sir. Yes, I realize the importance of it. Yes, I will. Goodbye. Hangs up. The President of the United States wants to know all about you. नाइब टेलीफोन पर चीफ ऑफ अपने स्टाफ बात कर रहे हैं जनरल. पार्स फ़ोन उठाते हैं. हेलो जी जनाब, पार्स बोल रहा हूँ. मैं अब उससे बातें कर रहा हूँ. नहीं जनाब, हम तयन नहीं कर सके कि ताकत का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया था. वो बात नहीं करेगा. जी हाँ जनाब. एक्सक्यूज़ मी, मैं उसे यहाँ काबू रखूँगा. मैंने इस घर में माशाल्लाह नाफिज कर दिया है. मेरे एक दोस्त की मिल्कियत है, रॉजर स्पेल्डिंग, टीवी नशरियात की कंपेयरिंग करने वाला. रॉजर स्पेल्डिंग टीवी की नशरियात क्या? ओ नहीं, मुझे यकीन है कि वो कोई बात नहीं करेगा. कौन? ओ हाँ जनाब, हाँ, मुझे इसकी अहमियत का एहसास है. हाँ मैं करूँगा. खुदा हाफिज़. टेलीफोन रख देता है. अमेरिका का सदर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है. बस बच्चों, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है. ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है.
अब आप अपने पेयर ऑफ वर्ड्स नोट कर लीजिए जो आपने आज करने हैं 110, 111 एंड 112। 110 है बच्चों कॉन्फिडेंट, CONFIDANT, इसका मतलब होता है राजदार। और दूसरा कॉन्फिडेंट है CONFIDENT, ये होता है पुरज़्म। उसके बाद 111 है बच्चों कॉन्शियस, ज़मीर, CONSCIENCE। और उसके बाद है कॉन्सेंशियस, इसको कहते हैं हम फर्स्ट शनास। और फिर कॉन्शियस एक और लफ्ज़ है CONSCIOUS, होश में। नंबर 112 है बच्चों पेयर ऑफ वर्ड कंसिडरेबल, CONSIDERABLE, कसीर या माकूल कहते हैं इसे। और दूसरा इसका पेयर है जी कंसिडरेट, CONSIDERATE, इसका मतलब होता है लिहाज रखने वाला। ठीक है बच्चों, इसके साथ आपने स्टोरी नंबर 9 करनी है अपनी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये था बच्चों आपका आज का काम, आपका लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूँगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।